The rhyme is in your rhyme book on page number 2. The title of the rhyme is A Little Bird and I. Come on, I want everyone to stand. Ikra and Ani, switch on the camera if you want to sit in the class. Come on. Once I saw a little bird come hop, hop, hop. Come on. So I cried, little bird, will you stop, stop, stop? And was going to the window to say, how do you do? But he shook his tail, little tail, and far away he flew. Come on, everyone. Again. Once I saw a little bird come hop, hop, hop. So I cried, little bird, will you stop, stop, stop? And was going to the window to say, how do you do? But he shook his little tail and far away he flew. Come on, बच्चों, सब learn होनी चाहिए आप लोगों को rhymes. Come on. Ani, switch on the camera. Start again. Once I saw a little bird. Repeat. Come hop, hop, hop. So I cried, little bird, will you stop, stop, stop? And was going to the window to say, how do you do? But he shook his little tail and far away he flew. Okay, all right, bachcho. Come on. Now, bachcho, sit down. Sit. And get your mathematics copy. Bachcho, sit down and get your mathematics copy and write down the date 25/1/2022. Come on. Write down the date. So today we are going to write down the number names. We had completed in our last class till 5050. So it's very simple to write down the number names. First of all, we are going to revise the spelling of 50 first. ठीक है? हम लोग सबसे पहले 50 की spelling को revise करेंगे. Come on, everyone. Revise it, ma'am. FIF 50 50. Come on. Read with ma'am 2-3 times. FIFTY 50. FIFTY 50. Come on. FIFTY 50. FIFTY 50. FIFTY 50. Okay, chalo.
Now, you all know what we have to do. We have to write down the spelling of 50 and the spelling of 1, 51. Then the spelling of 50 and the spelling of 2, 52. अब सबको पता है कैसे करना होता है ना? चलो, let's start. So what we are going to write? We are going to write number name. First one is 51. So write down the spelling of 50. अभी हमने learn करी FIFTY 50. And what is the spelling of 1? ONE 1. 51. FIFTY 50 and ONE 1. 51. FIFTY 50 and ONE 1. 51. FIFTY 50 ONE 1. 51. This is the last time I am telling you all, kindly switch on the camera if you want to sit in the class, please. Then after 51, 52. So what you have to do again? Again you have to write down the spelling of 50 first. Anna, what is the spelling of 50? Write down. Yes, Rakshansh. FIFTY 52. TWO2 52. Write down the spelling of 50 and the spelling of 1. Here the spelling of 50 and the spelling of 2. 52. Now, next one is 53. So 50, again we have to write down the spelling of 50. So what is the spelling of 50? FIFTY 50 and 3 THREE 3 53. FIFTY 50 and THREE 3 53. Arav Jain, switch on the camera. Arav Jain. Now, 54. Let's start. F, again the spelling of 50. FIFTY 50 and 4. FOUR 4. 54. FIFTY 50 and FOUR 4. 54. Then next one is 55. So what we have to do? Again, we have to write down the spelling of 50. Right. FIFTY 50 and the spelling of 5. FIVE 5. 55. FIFTY 50 and the spelling of 5. FIVE 5. Same right. 55.
Read and write. Myra, why you are late, beta? Myra, where are you? Where were you in the first slot? Do it. Come on, do your work. All right. Now, after 55, 56. 5, 6, 56. Okay. Now, the spelling of 50. F-I-F-T-Y. 50 and S-I-X. 6. 56. Okay, all right. Because today is Myra's turn, no, for singing welcome song. So I was waiting for her. Yesterday she was absent. Okay. F-I-F-T-Y 50 and S-I-6 56. No, it's okay, ma'am. It's okay. 57. चलो now बच्चों I think अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है what you have to do. Again we have to write down the spelling of 50. अगर हम हर बार 50 की स्पेलिंग रीड करेंगे तो वैसे ही हमें लर्न हो जाएगी, है ना? चलो F-I-F-T-Y 50 and the spelling of 7 S-E-V-E-N 7 57. F-I-F-T-Y 50 and S-E-V-A-N 7 57. Now after 57, 58. F-I-F-T-Y 50 and what is the spelling of 8? 8 की spelling क्या है? E-I-G-H-T 8. E-I-G-H-T 8. 58. F-I-F-T-Y 50 and the spelling of 8. E-I-G-H-T 8. 58. Now 59. F-I-F-T-Y 50 and N-I-N-E 59. F-I-F-T-Y 50 and N-I-N-E 59. And the next one is 60. Now 60. It's very simple. What is the spelling of 6? 60 में 6 आ रहा है ना, तो what is the spelling of 6? S-I-X. Okay, 6 and T.
जैसे 50 में TYT था वैसे 60 में TYT, XSIX TYT 60, 60 SIXTY 60. Okay? Start. एक पलंग पर बच्चे चार, कैसे सोए टांग पसार, उनमें से एक भरे खराटे और दूसरा उसको डांटे, तीजा दोनों को समझाए, चौथा जा खड़ा हो जाए, चारों लड़ने को तैयार, एक पलंग पर बच्चे चार, कैसे सोए टांग पसार. Come on, बच्चों, again. I want everyone to do. Come on. Kindly, everyone. You all have to do. Kindly do. चलो, let's start again. एक पलंग पर बच्चे चार, कैसे सोए टांग पसार, उनमें से एक भरे खराटे और दूसरा उसको डांटे, तीजा दोनों को समझाए, चौथा जा खड़ा हो जाए, चारों लड़ने को तैयार, एक पलंग पर बच्चे चार, कैसे सोए टांग पसार. ऑल राइट. ओके बच्चों. ऑल राइट. चलो बच्चों, नाउ आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे. द स्टोरी इज इन योर राइम बुक ओनली इन द लास्ट पेज. ईमानदारी का फल. काइंडली सेट. आज हम एक हिंदी की स्टोरी पढ़ेंगे. आपकी जो राइम बुक है हिंदी की उसके लास्ट पेज पर है, ऑन पेज नंबर 24. ईमानदारी का फल. ईमानदारी मतलब होता है ऑनेस्टी. नाउ यू ऑल सिट डाउन. सिट डाउन. ईमानदारी मीन्स ऑनेस्टी. ओके. तो ये एक लकड़हारे की स्टोरी है. लकड़हारा मतलब होता है वुड कटर. ठीक है. जो वुड को काटता है, जो पेड़ों को काटता है, उसे लकड़हारा कहते हैं. तो एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था. अब क्योंकि वो लकड़हारा है, वुड कटर है, तो वो लकड़ियां ही काटेगा. तो वो जंगल में एक दिन लकड़ियों को काट रहा था. तो वो किससे काटते हैं लकड़ी? किससे वो काट रहा होगा? सोचो जरा. विद द एक्स, कुल्हाड़ी से, है ना. तो वो कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था. कुल्हाड़ी ऐसे दिखती है, देखो, जिसको हम इंग्लिश में एक्स कहते हैं. इंग्लिश में ठीक है. तो दिस इज एक्स, कुल्हाड़ी. तो वो कुल्हाड़ी से एक दिन लकड़ियां काटता था. लकड़ी काटते काटते उसकी जो कुल्हाड़ी है वो पानी में जाकर गिर गई. तो वह रोने लगा. क्यों रोने लगा? कि उसने सोचा कि अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा. अगर मैं लकड़ी काटूंगा नहीं तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे. तो वो ये सोचकर रोने लगा. उसका रोना सुनकर पानी में से जल देवता बाहर आए. ठीक है. तो उन्होंने लकड़हारे से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? कौन बाहर आया पानी में से? जल देवता. ओके. तो उसने उसका रोना सुनकर जल देवता ने लकड़हारे से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो?
तो लकड़हारे ने बताया उन्हें सब सच सच कि ऐसे में लकड़ी काट रहा था और लकड़ी काटते काटते मेरी जो कुल्हाड़ी है वो जाकर पानी में गिर गई। अब बिना कुल्हाड़ी के मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? तो जल देवता ने कहा कि कोई बात नहीं, पानी में जाकर मैं लेकर आता हूँ। तो जल देवता पानी के अंदर गए और पानी में से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। ठीक है, सोने की कुल्हाड़ी लाकर उन्होंने लकड़हारे को दी। तो क्या लकड़हारे की सोने की कुल्हाड़ी थी? नो, नहीं थी ना, उसकी तो सिंपल लोहे की कुल्हाड़ी थी। तो जल देवता पानी में से निकले सोने की कुल्हाड़ी लेकर और सोने की कुल्हाड़ी उन्होंने लकड़हारे को दी। तो लकड़हारे ने ऐसा नहीं कहा, लोग करते हैं ना कि अरे चलो हमें अच्छी चीज मिल रही है तो हम ले लेते हैं, पर लकड़हारे ने ऐसा नहीं सोचा। लकड़हारे ने उन्हें कहा कि नहीं, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ठीक है, उसने लेने से मना कर दिया। अगर वो चाहता तो सोने की कुल्हाड़ी ले सकता था, वो तो और ज्यादा कीमती है ना, और ज्यादा प्रीशियस है, बट उसने उसे मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो जल देवता फिर से पानी में गए सोने की कुल्हाड़ी लेकर, और दूसरी बार जब वो पानी से बाहर आए तो उनके हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी थी, मतलब सिल्वर की एज थी। ठीक है, तो लाकर उन्होंने फिर से लकड़हारे को दी कि ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो लकड़हारे ने इस बार भी मना कर दिया कि नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। उसने सच बोला कि ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता फिर से पानी में गए और तीसरी बार में सबसे पहले सोने की कुल्हाड़ी लाए, सेकंड टाइम में वो चांदी की सिल्वर की कुल्हाड़ी लाए। तो जब लकड़हारे ने दोनों लेने से मना कर दिया कि ये मेरी नहीं है, जल देवता फिर से पानी में गए और पानी में से अब की बार वो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। तो लकड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी थी, है ना, तो लकड़हारे ने खुश होकर कहा कि हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो ये देखकर जल देवता बहुत ज्यादा खुश हो गए। किसे देखकर? लकड़हारे की ईमानदारी को देखा, ऑनेस्टी को देखकर। अगर वो चाहता तो वो सोने की कुल्हाड़ी भी ले सकता था, चांदी की भी ले सकता था, पर उसने नहीं ली। उसने सच कहा कि ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो यह देखकर जल देवता उससे खुश हो गए और खुश होकर उन्होंने, जैसे हैप्पी होकर नहीं गिफ्ट देते हैं, तो जल देवता भी लकड़हारे से खुश हुए और खुश होकर उन्होंने तीनों कुल्हाड़ी उसे तोहफे में दे दी, गिफ्ट में दे दी। सोने की, चांदी की और लोहे की तीनों कुल्हाड़ी लकड़हारे को खुश होकर उन्होंने दे दी। ओके, तो इससे हमें क्या मोरल मिलता है? हमेशा हमें ईमानदार रहना चाहिए, कभी भी बेईमानी नहीं करनी। दैट मीन्स हमेशा हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। समझ में आया? चलो, ऑल राइट बच्चों, नाउ get your awareness skill book. Only 5 minutes are remaining. Let's do our awareness skill work as well. Chalo, so in our awareness skill book, what we are going to do, we are going to write the seasons name again. हमने कल पढ़ा था ना सीजन, मैम ने हमको बताया था कि the meaning of season is मौसम। सीजन का मतलब होता है मौसम। So there are 5 seasons. There are 5 seasons. समर सीजन मतलब गर्मी का मौसम जिसमें हमें गर्मी लगती है। देन रेनी सीजन मतलब बारिश का मौसम जिसमें बारिश आती है। देन आता है ऑटम सीजन। ऑटम मतलब होता है पतझड़, जिसमें जो ट्रीज और प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो सूख कर ड्राई होकर नीचे गिर जाती हैं, टूट जाती हैं। देन उसके बाद आता है विंटर सीजन, सर्दी का मौसम जो अभी चल रहा है। विंटर सीजन इज गोइंग नाउ। ठीक है, सर्दी का मौसम जिसमें हमें ठंड लगती है, हम स्वेटर्स, वी यूज्ड टू वेयर स्वेटर्स, कैप्स, मफलर्स, ग्लव्स, एवरीथिंग। एंड विंटर सीजन के बाद आता है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन जिसमें फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, मतलब फूल खिलते हैं। दैट इज अ वेरी प्लेजेंट सीजन। So take out page number 70. Page number 70. I am writing the book name and the page number here in the chat box. You kindly see there in case of any doubt. Your awareness skill book, page number 7070.
ठीक है, तो बच्चों write down the date 25/1/2022. So you have to look at the picture and you have to write down the name of season. Okay, चलो we'll do it together. So the first one, देखो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है? The girl is giving water to flowers. मैम ने आपको क्या बताया था? कौन से सीजन में फ्लावर्स ब्लूम करते हैं? इन स्प्रिंग सीजन. So what we have to write? We have to write spring season. Come on. S, the first letter must be capital. S-P-R-I-N-G. Spring. The season in which the flowers bloom. Spring season. In case of any doubt, bachcho, kindly ask me any time. Okay? Now, the next season. Look at the picture. What the girl is doing? The girl is playing with water in the beach. तो हम पानी के साथ कब मस्ती करते हैं? कब हमें अच्छा लगता है कि स्विमिंग पूल में जाएं, फॉर स्विमिंग, या कहीं पानी की जगह पर जाएं? इन समर सीजन. देखो है ना, द गर्ल इज प्लेइंग इन द वाटर. इट्स समर सीजन, जिसमें गर्मी होती है, तो हमें सब ठंडा ठंडा अच्छा लगता है इसमें. समर. SUMMER. समर. SUMMER. Summer. Now, the next picture, try to identify it. What is this? क्या हो रहा है यहाँ पर? The girl is holding an umbrella and rain is coming. तो जिस सीजन में बारिश आती है उसे क्या कहते हैं? रेनी सीजन. RAINY. रेनी. Rainy. Spring, summer, and rainy. Then, now the next one. Look, all the leaves are falling down after drying up. सारी जो पत्तियां हैं पेड़ पौधों की वो गिर रही हैं सूखकर. तो कौन से मौसम में ऐसा होता है? किस मौसम में? The leaves fall down in autumn. मतलब पतझड़ का मौसम. AUTUMN. 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 And the last one is, look, the girl is playing with the snow. Snow, तो बर्फ कौन से मौसम में होती है? स्नोफॉल कौन से मौसम में होता है? ठंड किसमें होती है? In which season we used to wear sweaters and caps? In winter season. So write down winter.
WINTR. Winter. Very nice, bachcho. Done? Good. Chalo, come on, everyone. Repeat it. 1 more minute is left. Repeat all the spellings. Chalo, come on. We'll say it loudly. Spring. 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 Then summer. 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 Then rainy. 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 And then autumn. 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 And the last one is winter, मतलब सर्दी का मौसम. WINTER. 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 Okay. So there are 5 seasons. Summer season. All right, everyone. Very nice. Those who have completed. Those who are writing, write down. Summer season मतलब गर्मी का मौसम. Rainy season मतलब बारिश का मौसम. Then autumn जिसमें पत्तियां पेड़ पौधों पे से गिर जाती हैं. Then winter season मतलब ठंड का मौसम. And the last one is spring season in which the flowers bloom. All right. Okay, bachcho. Now we have to end the class. So everyone, bye bye. Take care. See you tomorrow. Have a nice day, bachcho. Bye. Take care. Stay at home. Stay healthy. Okay. Eat lots of vegetables and fruits in order to keep yourself